গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। শোনা যাচ্ছে আমাকে দীপঙ্কর? শোনা যাচ্ছে? ওকে 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 ওকে। সো ফ্রেন্ডস, am I audible? Please raise your hand. আমাকে শোনা যাচ্ছে? ওয়েলকাম ওয়েলকাম এভরিবডি। থ্যাংক ইউ অঙ্কিতা, প্রিয়া, কোমল, সুমন, সুমিতা, সুজয়, থ্যাংক ইউ তন্ময়, শান্তনু, দীপঙ্কর, প্রতীক, প্রসেনজিৎ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কৃষ্ণেন্দু, ইয়েস প্রবীর স্যার, গুড মর্নিং। দীপঙ্করকে ইয়ে করো, গুড মর্নিং, কো-হোস্ট বানাওনি? অলরেডি আই হ্যাভ ডান দ্যাট স্যার, অলরেডি হয়ে গেছে, করে দিয়েছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ক্যারি অন। ওকে, তো আমি তাও একবার চেক করে নিচ্ছি। ওকে, করেছিলাম মনে হচ্ছে কোনো কারণে, অলরেডি করে দিয়েছি, নো প্রবলেম। সো একদম একদম ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস। আমার আরেকটা লগইনে আমি একটু কোহোস্ট করতে বলবো। হ্যাঁ, ওকে আমার ওকে আরেকটা ওকে লগইন আসলে পরে সেটা আচ্ছা, host করে দেবেন। দীপকদাকে একটু কো-হোস্ট বানাও। ওকে ডান। কৃষ্ণেন্দু দা, আমি আরেকটা লগইন নেবো, ওটাতে একটু কোহোস্ট করে দেবেন স্ক্রিন শেয়ারিং এর জন্য। হ্যাঁ, হঠাৎ Yes, করে আমার ল্যাপটপ yes. একটু কাজ করে বন্ধ করে দিয়েছে। ইয়েস, জন্য। বলুন বলুন বলুন। বলছি আমার পিসি থেকেও আমি একটা লগইন নেবো, সেটা তো কোহোস্ট করবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ করুন, সেটা লগ ইনটা করুন, আমি করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, পিসি করছি, আমি স্টার্ট করছি। মানে হঠাৎ করে একটা আনসার্টেনিটি হয়ে গেছে, পিসিটা ডাউন হয়ে গেছে। ওকে, নো প্রবলেম। ইয়েস দীপঙ্কর, কি নামে হ্যাঁ আছে বলুন ওটা? স্যার। কি নামে আছে ওটা? ওটাও একই নামে ঢুকবে। ওটা আমি লগইন করছি, একই নামে আসবে। আপনাকে তো ওটা অ্যান্ড্রয়েড ব্লুডয়েড কি দেখাচ্ছে? কোনটা, যেটা এখন দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, আপনি ওই নামটা করে দিন, আমি করে দিচ্ছি। So friends, already we are 71 participant. শুরু করে দেবো আমরা। 8:37 হয়ে গেছে, আমরা 8:40 তে জাস্ট শুরু করে দেবো, রাইট? সো জাস্ট একদম স্যার। 2 or 3 minutes to go. So Dipankar, are you ready? হ্যাঁ স্যার, আমি রেডি আছি। বাস আমার এটা স্টার্ট হয়ে গেলেই আমি আপনার কাছে বলে দেবো। গ্রেট। সো আমি একটু বলে দিই, আজকে যে ট্রেনটা হতে চলেছে, এই ট্রেনটা এর আগে হয়নি। আমরা খুব পরিশ্রম থাকি ভাই, ইনভাইট করি, খুব খেটে খুঁটে ঘেমে গেলাম বাবা, ইনভাইট হলো, প্ল্যান দেখালাম, আরো ঘেমে গেলাম প্ল্যান দেখাতে গিয়ে, পরে জয়েন হলো না, ফলো আপ করে করে দিন কেটে গেল, राइट? यही प्रॉब्लम है, कारा कारा भूख मतलब प्लान दिखाना हो गया, इनवाइट हो गया, प्लान्स हो गया, उसके बाद फॉलो अप हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। इस प्रॉब्लम से कौन कौन गुजर रहा है हो? प्लीज रेज योर हैंड। सभी ने? सर मैं भी गुजर रहा हूँ सर, दीपंकर सर, ठीक है ना? तो आज हम लोग ये सोचते हैं चलो इसका एक हल निकलेगा आज, क्योंकि इसका आज का सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई, ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट, नो FIR। ठीक है, एक डायलॉग था ना एक तो हिंदी में, कौन बोल सकता है, वो एक पिक्चर में था, नो FIR, नो कॉम्प्लेन, फैसला ऑन द स्पॉट। सो आज वही चीज होने जा रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि स्पॉट ज्वाइनिंग कैसे हो, कि भाई प्लान दिखाने के तुरंत बाद ही उसको ज्वाइनिंग कराए, उसका प्रोडक्ट उठाइए, कैसे होगा? दीपंकर, मैं सही हूँ? यही चीज होने जा रहा है। एग्जैक्टली सर, एकदम आप लोगों के Exactly. एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एकदम मेरे एकदम। साइड तो से जितना हो सकता है मैं जरूर करूंगा।
भीषण पावरफुल टॉपिक, एक्सेलेंट टॉपिक। ओके, सो अगर ये आज का जो सेशन है ये अगर कोई पूरा सीख ले या फिर समझ ले, फिर तो उसके लिए कोई मतलब कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, है ना। तो कौन कौन एक्साइटेड हो प्लीज चैट में लिखिए एक्साइटेड। कौन कौन एक्साइटेड हो प्लीज चैट में लिखिए। आज का ये सेशन के लिए एक्साइटेड कौन हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत है ऐसा एक्साइटेड, ठीक है ना। तो वैसे ही एक टॉपिक लेके आ रहा है हम लोग ग्रॉस टीम विक्ट्री के अंदर में। एक एक हम लोगों ने बोला था ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम लाएंगे कि आप लोगों का काम करना एकदम आसान हो जाए। तो आई थिंक मैं हम लोग ये कर पा रहा हूँ, और मेरे साथ जितना सारा ट्रेनर है एवं सबके ऊपर मिस्टर प्रोवी रॉय है। तो यस, एक्साइटेड यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग शुरू करने जा रहा है। ऑलरेडी 8:39 हो गया है। दीपंकर, आपका जो दूसरा ज्वाइनिंग है वो हो गया है, मतलब लॉगिन? सेम नाम से है सर, सेम नाम से है, आप उसमें भी को होस्ट कर दीजिएगा। दीपंकर दे सोनाली दे, राइट। सो इसको मेक को होस्ट, राइट, ऑलरेडी डन। ओके ओके सर, ओके सर, सो ओके, फ्रेंड्स, थैंक यू और सर। देर ना करते हुए मैं बुला लूंगा, क्योंकि ये इतना टॉपिक है कि भाई रुका नहीं जा रहा है भाई। ये शुरू करो, ठीक है। 8:40 टाइम भी हो चुका है। जो नहीं आया है दे आर मिसिंग समथिंग। जो अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, सो दे शुड मतलब मिस समथिंग। उन लोगों को मिस करना चाहिए, है ना, अभी तक नहीं आया जो। फिर भी अगर आप चाह रहे हो कि आपका टीम में कोई इंपॉर्टेंट कोई है, कोई टीम में है, तो उनको एक बार व्हाट्सएप भेज दीजिए, एसएमएस भेज दीजिए, फिर कॉल कर लीजिए, क्योंकि जो होने जा रहा है वो एकदम फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है आज का जो है वेरी यूजफुल होगा। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है इसको ध्यान से सुनिए, दूसरा काम मत कीजिए, और नोट लेते रहिए, और इसको अप्लाई कीजिएगा तो आपका 1 महीने 2 महीने में बिजनेस डबल ट्रिपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाएगा। सो वेलकम दीपंकर, वेलकम टू दिस ट्रेनिंग सेशन। नाउ स्टेज इज योर्स। सो प्लीज हम लोग को सिखाइए कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। सर वेरी गुड मॉर्निंग सबको, स्पेशली गुड मॉर्निंग टू प्रवीण सर, गुड मॉर्निंग टू माय ग्रेट अपलाइंस विश्वनाथ सर, दीपक सर, एंड ऑल माय ग्रेट अपलाइंस हु आर अवेलेबल इन दिस प्रोग्राम। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रहा है कि आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर पा रहा हूँ ये स्टेज को, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हो सकता है, एक्चुअली मेरे 2 नाम से लॉगिन है, एक में मेरा वीडियो आएगा, एक में नहीं आएगा, ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो अभी अचानक हो गया लास्ट मोमेंट पे। तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, हम आपको पूरा पूरा सहायता करेंगे हर चीज में। आज की जो टॉपिक था वो तो काफी अच्छा था। आप लोगों को स्क्रीन शेयर दिख रहा है? यस यस, हो रहा है, यस। हो रहा है ना? ठीक है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जस्ट एक बार स्क्रीन को कर लूं। अभी आएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है, कृष्णेंदु सर ने एकदम सही बताया कि आज की जो टॉपिक है, हम लोग वेस्टेज में जो टोटल 7 काम होता है ना, जो डेली करना होता है, आप लोगों को पता होगा डेली हम लोग 7 काम करते हैं वेस्टेज में। तो उस 7 काम में हम लोग जो डेली करते होंगे वो तो आपको पता ही है कि सब चीज हम, अभी स्क्रीन आ गया कंप्लीट सबके पास? अभी स्क्रीन क्लियर है सबके पास? कृष्णेंदु सर, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है क्या? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम হ্যাঁ ঠিক আছে, স্ক্রিন আসছে। গুড মর্নিং লেখাটা চলে আসছে না এখন? হ্যাঁ यस यस এসছে। ओके, हाँ, ओके, ठीक है। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। नाउ अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो दिख रहा है चेहरा, ये मैं हूँ, और मेरे साथ जो है मेरे मिसेस है। ये 31 दिसंबर 2020 के पहले की फोटो है, जिस टाइम आई वाज सर्विंग इन इंडियन एयरफोर्स, और मेरे मिसेस अकेले ये काम कर रहे थे वेस्टेज की, और मैं पार्ट टाइम उनको हेल्प कर रहा था। सबसे मजेदार बात ये बताऊं कि कुछ लोगों को लगता है, हो सकता है इस हमारे टोटल अभी जो मीटिंग में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो दूसरे काम के साथ सोच रहे कैसे मैं वेस्टेज को कर सकता हूँ। देखिए, मैं लाइव एग्जांपल आपके सामने खड़ा हूँ। मैं एयरफोर्स में नौकरी करते हुए भी मैं अपने मिसेस को सपोर्ट किया था।
और आज के डेट में वेस्टिज में हम लोग डायमंड डायरेक्टर लेवल पे है। एंड इसमें जो भी अभी जो मीटिंग है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग हाउस वाइफ है एंड वो लोग सोचते हैं यार घर में इतने सारे काम रहे तो उसके बाद मैं वेस्टिज कैसे करूं। मैं उन लोगों की जानकारी के लिए भी बता देता हूँ, मेरे वाइफ इस काम को पिछले 3 साल से अपने जो घर की सारे काम और उसके साथ पैरेलली इसको ग्रो करते हुए आज के डेट में वी आर बोथ इन अ डायमंड डायरेक्टर लेवल। ठीक है, तो इसके मतलब आप कोई भी काम करें उसके साथ वेस्टेज को आप ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा, आप एज ए हाउस वाइफ आप इस काम को बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अभी वॉइस नंबर 32 जो लेटेस्ट इशू आप लोगों को इसमें मिलेगा अभी माई वेस्टेज साइट में, उसमें ये देखिए हम लोगों की फोटो है, जॉइंट फोटो है, ये 44 नंबर पेज में है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वेस्टेज में जो आपको जो इनकम आता है ना, लोग वेस्टेज में आते हैं इनकम के लिए, ठीक है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि वेस्टेज में इनकम के लिए योर ग्रोथ इन वेस्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पर्सनल ग्रोथ। आप कितने आपने आपको ग्रो किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेस्टेज आपको कितना रिटर्न देगा। ठीक है, तो ये पर्सनल ग्रोथ के लिए आप लोगों को छोटा छोटा कुछ स्टेप्स है वो मैं बताऊंगा। वो क्यों बता रहा हूं वो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे पहला चीज क्या है, आप जो ड्रीम जिस पर्पज से भी आप वेस्टेज में आए हैं उसमें आपकी फोकस कभी खोना नहीं चाहिए, उसमें आप फोकस रहना चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, फोकस ऑन योर ड्रीम। ठीक है, किसी को अगर इसको बंगाली में भी ट्रांसलेट करने की कोई ऐसे तकलीफ किसी को आ रहा है वो हैंड रेस कर सकता है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको बंगाली में भी बता सकता हूँ ट्रांसलेट करके, मेरे लिए মাঝে both মাঝে language I am মাঝে comfortable মাঝে with। বাংলা বলুন, মাঝে মাঝে হিন্দিও বলুন, তাহলে ওকে, হবে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। দেখুন, ভেস্টিজে আপনি কি নিশ্চয়ই এসছেন কিছু একটা লক্ষ্য নিয়ে, রাইট? আপনি ভেস্টিজে যে লক্ষ্যটা নিয়ে আসুন না কেন, ইফ ইট ইজ আর্নিং মানি, তো সে সবই এবং এনি 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 पर्पस के लिए आप वेस्टेज में आए हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पर्सनल ग्रोथ। मतलब आप कितने अपने आप को कितना एनहांस कर सकते हैं, कितने अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको वेस्टेज क्या रिटर्न में मिलेगा, आपको वेस्टेज से क्या रिटर्न मिलना है। তো আপনার ফোকাসটা যে ড্রিমটা নিয়ে আপনি ওয়েস্টেজ জয়েন করেছেন তার উপর আপনার কন্টিনিউয়াস ফোকাস থাকবেন। ফার্স্ট, পার্সোনাল গ্রোথের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ফোকাস অন ইওর ড্রিম। সেকেন্ড পয়েন্ট, কন্টিনিউয়াস এফোর্ট ফর টিম বিল্ডিং। দেখুন, বিগ মানি কামস ফ্রম বিগ एंड एक्सीलेंट टीम, সেই জন্য কন্টিনিউয়াস এফোর্ট आप लोगों को देना पड़ेगा टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सीलेंट टीम। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चूज व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू लिसन। देखिए, हम लोग को ना यहाँ पे वेस्टेज में ज्वाइन करने के बाद मैं आप लोगों के स्पेशली चीज बता रहा हूं कि आप क्या सोचते हो ना, उस सोच को भी कंट्रोल करो। कभी मत सोचो कि मतलब मैं कुछ भी सोचूं, नो, ऑलवेज थिंक कि मैं किस पर्पज से वेस्टेज में आया हूं और वो चूज करो क्या सोचना है। यू मस्ट बी वेरी पर्टिकुलर फॉर योर ग्रोथ। ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोचो, हर चीज को ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोचो। और एक चीज क्या, लिसन, क्या सुन रहे हो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना। आपके सलाहकार कौन है, हु इज गाइडिंग यू, किससे आप सलाह ले रहे हो, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन वेस्टेज। अगर पर्सनल ग्रोथ चाहते हो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज बी अलर्ट। आपके कान हमेशा खुला रहना चाहिए, आंख खुला रहना चाहिए, यू मस्ट बी अलर्ट। रास्ते में चलते हुए आपको दिमाग में आना चाहिए, अच्छा इस बंदे से एक बार प्लान शेयर करके तो देखो, एक बार बोल के तो देखो, ये बंदे से हो सकता है। आपको ये करते करते पता चल जाएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारा चीज मैं बताऊंगा अभी। एंड नाउ कम्स द फिफ्थ पॉइंट, कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है। हमारे जितने सारे लीडर्स इस प्लेटफॉर्म में आके वेस्टेज के बारे में बताते हैं, आप ध्यान दिए होंगे कि सारे लीडर्स इस चीज में फोकस करते हैं कि आपको ड्रीम में, आपके एफर्ट्स में, आपके अलर्टनेस पे, आपके कंफर्ट जोन में, ये क्यों बताते हैं कि बेस्ट रीजन, अगर ये चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, ये 5 पॉइंट को, तो आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ होगा। और पर्सनैलिटी में ग्रोथ की क्या रीजन है मैं बता रहा हूँ, क्यों रिक्वायर्ड है। आज के डेट में वेस्टेज इज अ पॉपुलर ब्रांड इन इंडिया। आप किसी भी फोरम में, किसी भी जगह पे वेस्टेज के नाम ले लो, आपको वहां से अगर 100 में से कम 20-25 हाथ उठ जाएगा जो वेस्टेज के साथ ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, आज क्वेश्चन ये नहीं है कि वाई मैं वेस्टेज में ज्वाइन करूं,
আমি ভেস্টিজে কেন জয়েন করব আজকে ডেটে, এটা কোশ্চেন না। আজকে ডেটের কোশ্চেন আমি ভেস্টিজ তো করতে কেন আপনার সাথে করব, রাইট? আশা করি আমার কথাটা আপনারা বুঝতে পারছেন খুব ভালো করে যে आज के डेट में ये सवाल है मैं आपके साथ क्यों वेस्टेज करूं, वेस्टेज क्यों करूं वाला सवाल खत्म हो गया, वो दिन खत्म। नाउ वी हैव टू थिंक इन दिस वे, मैं आपके साथ क्यों करूं। प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस इन वेस्टेज, देखिए जो भी वेस्टेज में सक्सेसफुल होता है ना, उसके लिए आपको अनशेकेबल फेथ होना चाहिए, किसके ऊपर? अपने ऊपर और वेस्टेज सिस्टम के ऊपर, ठीक है। दूसरा पॉइंट 100% सबमिशन टू वेस्टेज सिस्टम, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है फुल ओनरशिप ऑफ योर वेस्टेज बिजनेस, ये बिजनेस आपका है, डोंट टेक इट इन दिस वे मेरे अपलाइन का है मैं किसी और का है, ये आपका है, इसके 100% ओनरशिप लीजिए। देखिए मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरे मिसेस जब इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे, वी वर स्टेइंग इन आगरा, हमारे सारे अपलाइन कलकत्ता से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स जिसके कारण हम आगरा में रहते हुए भी हम अपने ब्रोंज डायरेक्टरशिप कंप्लीट किए थे। स्पेशली यहाँ पे जो 5% से 10% के लोग जो जितने सारे हैं वो सोच रहे थे कि सर मैं कैसे प्लान दिखाऊं, मैं तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। आएगा, जब जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट्स पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, যতগুলো পয়েন্টস আমি বলছি সেগুলোতে যখন আপনারা ফোকাস করবেন, সেগুলো যখন ধ্যান দেবেন, তখন কিন্তু আপনি নিজেই আপনার নিজের প্ল্যান শো করতে পারবেন। সব সময় আপনাকে আপলাইন সব সময় পাবে না পাশে, ঠিক আছে। সেই জন্য আপনাকে নিজেকে ডেভেলপ করতে হবে, ঠিক আছে। আপনার মধ্যে একটা বার্নিং ডিজায়ার থাকা চাই, ইউ শুড হ্যাভ সাম বার্নিং ডিজায়ার ফর সাকসেস। পজিটিভ এন্ড এম্পাওয়ারিং সেলফ ইমেজ, নিজের ইমেজটাকে সম্পূর্ণ পজিটিভ এবং মানে তার মধ্যে একটা পজিটিভিটি থাকবে। আপনার সেলফ ইমেজ আয়নার সামনে দাঁড়ালে যেন মনে হয় ইয়েস ইউ আর এন্টারপ্রেনার, এই মেন্টালিটির সঙ্গে আপনি আপনাকে সবসময় নিজেকে দেখবেন। নেক্সট পয়েন্ট, সবসময় লার্ন, শেখার চেষ্টা, শুধু শিখবো না, চেঞ্জ, যেটা শিখলাম সেটা ইমপ্লিমেন্ট করব, সবসময় এই টেন্ডেন্সি থাকা উচিত। তার জন্য এই যে ভেস্টিজ টিম ভিক্টরি থেকে যে আপনারা যে ডেইলি লার্নিং যেটা পাচ্ছেন, ইটস এক্সিলেন্ট, আমি বলবো ইটস এক্সিলেন্ট। এই অপরচুনিটি আপনারা ডেইলি পাচ্ছেন এবং এই অপরচুনিটির মাধ্যমে আপনারা ডেইলি লার্ন করছেন এবং সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছেন, আমি জানি। তার জন্য আপনাদের সবারই বিজনেসে অনেক বেশি গ্রোথ হয়েছে, এটা সবাই আপনারা নিজেরাই মানতে বাধ্য হবেন। এটা প্রবীর স্যারকে হ্যাটস অফ টু প্রবীর স্যার, কারণ প্রবীর স্যারের একটা বড় এফোর্ট, যার জন্য আজকে সত্যি সবাই উপকৃত হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে লাস্ট পয়েন্ট বাট নট লিস্ট, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, পার্সোনাল স্পন্সর। এটা আপনাকে একদম মানে পিলার, সবচেয়ে স্ট্রং পিলার, এটাকে কখনো ভুলে যাবেন না, পার্সোনাল স্পন্সরিং করতে থাকবেন, ঠিক আছে। আশা করি আমার কথাগুলো সবাই বুঝতে পারছেন, ঠিক আছে না? আমি একাই বলে যাচ্ছি, আপনারা বুঝতে পারছেন না, বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা আমি একটা পয়েন্ট বলছিলাম, পজিটিভ এন্ড এম্পাওয়ারিং সেলফ ইমেজ। আমি এটা নিয়ে একটা জাস্ট একটা ছোট্ট একটা পয়েন্ট বলবো, কেমন করে আপনার সেলফ ইমেজ কে পজিটিভ এবং এম্পাওয়ারিং করতে পারেন। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ 5 लाइन बोला था, जो आप डेली सुबह अगर बोलते हैं या किसी भी मीटिंग से पहले बोलते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। वो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जैसे आपकी जो सेल्फ इमेज है वो पॉजिटिव हो जाए। इसके लिए आपको किसी भी प्रेजेंटेशन से पहले एक चीज दिमाग में रखना है, आपको खुद से बोलना आई एम द बेस्ट। सेकंड, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। थर्ड, गॉड इज ऑलवेज विद मी, ईश्वर मेरे साथ है। फोर्थ, आई एम द विनर। एंड फिफ्थ, टुडे इज माय डे। ये 5 लाइन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बोला हुआ है, उनके किताब से लिया हुआ है। ये आपकी इमेज को पॉजिटिव और एम्पावरिंग बना सकते हैं, ठीक है। नाउ दोस्त, ये सारे वेस्टेज एम्बेसडर्स है, जो वेस्टेज एम्बेसडर्स जो हमारे साथ अभी है, मेरी आवाज आ रहा है? हेलो, ये जो वेस्टेज एम्बेसडर्स यहाँ पे दिख रहा है, ये लोग सारे लोग यही प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आज के दिन में यहाँ तक पहुंचे हैं। दैट मीन्स रास्ता इन लोगों ने दिखा दिया कैसे जाना है, आप लोग भी जा सकते हो। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग देखिए, हमारे मेंटर, हमारे पावर हाउस, ये प्रवीर सर को देखिए कि हाउ ही इज कंटिन्यूअसली वर्किंग हार्ड। आप लोगों को पता है ही इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एंड सक्सेसफुल, बट उनकी देखिए मीटिंग शेड्यूल, 27 तारीख जमुरिया, 28 तारीख दुर्गापुर। He has left his comfort zone. He is focused.
खुद सीख रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, कंटिन्यूअस इज फोकस फॉर आवर ग्रोथ। तो आप कितनी बड़ी विजनरी है जो हमारे मैनेजमेंट हो गया, हमारे प्रोड्यूसर या हमारे सारे के सबके अप्लायंस, कितने बड़े उनकी मतलब सोच है जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, हमें कंटिन्यूअस ग्रोथ मोड में लेके जा रहे हैं। तो इसी ग्रोथ मोड के साथ अगर आप चलते रहेंगे तो आपकी जो आगे जाके जो आपकी जो रिटर्न्स आएगा वेस्टेज से वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, बिकॉज मैंने सबसे पहले बताया था आपकी वेस्टेज से जो रिटर्न आना है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पर्सनल ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आते हैं जो मेन टॉपिक, हाउ टू डू ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग और क्लोजिंग आफ्टर वेस्टेज प्रेजेंटेशन। देखिए दोस्त, वेस्टेज में जो 7 काम करना होता है आप लोगों को पता है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इनवाइट पीपल, मीटिंग एंड टीम वर्क, एंड फाइनली दैट इज फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। मैं श्योर हूं कि आप सारे लोग प्रोडक्ट डेली यूज करते हैं, शेयर भी करते हैं लोगों के साथ, एंड लिस्ट भी बना रहे, इनवाइट भी कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारा ट्रेनिंग हमारे इस टीम वेस्टेज के टीम विक्ट्री के ग्रुप में होते रहता है। और जो मेन टॉपिक होता है मीटिंग, हमने तो सारा चीज कर लिया, प्रोस्पेक्टिंग पार्ट जब से लिस्ट बनाया तब से हमारा प्रोस्पेक्टिंग पार्ट स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम इंडिविजुअल से मिलेंगे, जहाँ पे मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद हम प्लान शो करेंगे, प्लान शो करने के बाद ऑब्जेक्शन आएगा, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, जो कृष्णेंदु सर कुछ दिन पहले एक मीटिंग किए थे जिसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को पड़ता। आई होप आपके दिमाग में वो सारा पॉइंट्स क्लियर है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हो गया, नाउ जो चीज है वो ज्वाइनिंग। कई बार क्या होता है हैंडलिंग होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं आता है, कुछ कुछ छोटे छोटे हिंड्रेंस आते रहता है। आज उसी छोटे छोटे कुछ हिंड्रेंस के बारे में मैं आपको विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जो आप इंप्लीमेंट करेंगे आपके बिजनेस में तो आपको एक अच्छा सा रिटर्न आ सकता है उसमें से। ठीक है फ्रेंड्स, आर वी रेडी? हम लोग रेडी है? कौन कौन रेडी है? थोड़ा सा हैंड रेज कीजिएगा जितने लोग रेडी है अभी इसमें सुनने के लिए। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे एक बहुत अच्छा चीज, अ गुड स्टार्ट इज हाफ डन। कैसे अच्छा प्रेजेंटेशन करना है उसके बारे में तो सबको पता चल गया, राइट? गुड स्टार्ट इज हाफ डन। आपके शुरुआत अच्छा है तो आपने आधा रास्ता तैयार कर लिए। और सबसे मजेदार बात आपको बताऊं, इट्स एक कोई भी ज्वाइनिंग जो आता है ना वो टोटली आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। एटीट्यूड कैसे एनहांस करना वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एटीट्यूड कैसे आपका अच्छा होगा, कैसे एटीट्यूड को आप एनहांस करेंगे उसके बारे में मैं सारा चीज आपको बता दिया। तो आपके एटीट्यूड डिसाइड करेगा आपका ऑल्टीट्यूड, राइट? तो आते हैं मेन टॉपिक पे, जो क्लोजिंग में जिसमें आप लोगों को इतने सारे चैलेंजेस आ रहा था, वो सारे चैलेंज इस मीटिंग के बाद आप लोगों को काफी हद तक हल हो जाएगा। इसलिए आप बने रहिए और सुनते रहिए, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन जब क्लोज करते हैं ना, देखिए ये क्लोजिंग सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है हम लोगों का। देखिएगा, आप मीटिंग कर लिए, सब कुछ कर लिए, उसके बाद जब लास्ट जो पॉइंट आता है ना वो हमारे लिए सबसे रिवार्डिंग होता है। लेकिन वो 0.1% जो छोटी सी चीज रह जाता है जिसके कारण कई बार हमारा छूट जाता है, उसी को क्लियर करना है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द नेटवर्कर्स आर वेरी एक्सीलेंट इन डिस्कसिंग प्रोडक्ट। सही बता रहा हूँ, हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे देते हैं, उसके बाद हम लोग उनको बहुत अच्छे से हर चीज बताते हैं, हर स्टेप मार्केटिंग प्लान बहुत सुंदर से बताते हैं। लेकिन जैसे आता है वो छोटी सी प्रॉब्लम हमारे दिमाग में आ जाता है, जैसे हम लोग वो किस मोड में आते हैं, ज्वाइनिंग मोड में आते हैं, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? क्लोजिंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन, और इसी प्रेजेंटेशन में आपके रैपो बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग और सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा और आप सीधा जाके अपने गोल्स तक पहुंचेंगे। अच्छा, मेरे आवाज में किसी को दिक्कत आ रहा है? काइंडली शेयर कीजिएगा। किसी ने लिखा था सर आपकी आवाज कट रहा है। ऑल ओके? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं इसी डाउट में पड़ गया था कि मेरी आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, प्रेजेंटेशन कब सक्सेसफुल हो हम लोग मानते हैं? जब ज्वाइनिंग या क्लोजिंग कंफर्म हो जाता है, राइट? तो आप जो क्वालिटीज वो मैंने पहले ही बता चुका हूं, जो गोल ओरिएंटेड आपको होना है 100%, ये सब सारा चीज मैं बता दिया, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, व्हेन एंड व्हाई टू क्लोज। देखिए, क्लोज तभी करना है जब हमें इच्छा ना हो, सामने वालों की इच्छा हो खरीदना, दैट इज करते हैं प्रॉपर क्लोजिंग। क्यों? देखिए वेस्टेज में क्या है ना, हम एक बार सामान देके आ जाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा।
हमें उस इंडिविजुअल को सिस्टम के साथ प्लग इन करके रखना पड़ेगा टिल द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि उनकी इच्छा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी इच्छा नहीं। दूसरा चीज है कि जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खत्म हो जाए तुरंत आप क्लोजिंग के लिए चले जाए, उनकी ज्वाइनिंग कैसे कराना है उसमें फोकस कर दीजिए फुल फ्लेज। थर्ड, आप पूरे मीटिंग में कम से कम 3 बार कोशिश करेंगे क्लोज करने के लिए। जब भी वो कुछ सिग्नल्स देंगे, उनको कुछ वो ज्यादा इच्छा दिखाएंगे, कुछ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स होता है, जैसे वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कुछ चीज के बारे में, इसका मतलब ही इज इंटरेस्टेड, उस टाइम एक बार क्लोजिंग की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्लोजिंग की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आऊंगा आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड में आऊंगा इफेक्टिव ज्वाइनिंग और क्लोजिंग टेक्निक में। देखिए, डायरेक्ट क्लोज कुछ टर्म्स में बताऊंगा, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कितने तरह का क्लोज हो सकता है। मैं ज्यादा नहीं, ओनली 10 पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये सारे 10 पॉइंट्स के इर्द गिर्द बाकी सारा पॉइंट्स घूमते हैं। पहला है डायरेक्ट क्लोज, सेकंड है समरी क्लोज, थर्ड है थर्ड पार्टी क्लोज। ये सारी चीज की सोचने की जरूरत नहीं, सारी चीज की डिटेल एग्जांपल मैं बताऊंगा। ट्रायल क्लोज, थर्ड है सैंपल ट्रायल क्लोज, फोर्थ है अल्टरनेटिव क्लोज, फिफ्थ है assumption क्लोज, assumptive क्लोज, बिल्ड अप क्लोज, आस्क फॉर हेल्प क्लोज एंड बूमेरंग क्लोज। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये सब किताबी चीज तो मैं नहीं बता रहा हूँ। नो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, मैं आपको पहले ही बताया था मीटिंग शुरू होते के टाइम ही कि मेरे सारे ऑफलाइन रहते थे कलकत्ता में, तो सारा मीटिंग मुझे खुद जाके करना पड़ता था विद माय मिसेस। तो फॉर्चुनेटली मैं एमबीए किया था, तो एमबीए में क्या है, मेरा एचआर एंड आईटी में एमबीए है, लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या होता है ना, सारे एमबीए के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड रहते हैं। तो उसमें एक सब्जेक्ट होता था मार्केटिंग। तो जब वेस्टिज को मैं जाना, देखा और सीखा, तो मुझे लगा उस चैप्टर को थोड़ा सा पलट लूं और कुछ सीख लूं, और सीखा था तो मैं उसको इम्प्लीमेंट किया था। इम्प्लीमेंट करने के बाद जब प्रैक्टिकली रिजल्ट ओरिएंटेड जो है ना, उसी से मुझे ये सारा चीज मिला। तो इसको मैं एक एक करके एग्जांपल दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पे है डायरेक्ट क्लोज। डायरेक्ट क्लोज क्या है? डायरेक्ट क्लोज ये होता है कि जब मतलब सामने वाला कुछ उससे उससे कुछ कमिटमेंट लीजिए, ठीक है, जब वो कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपने स्पिरुलिना के बारे में बताया, या मान लीजिए आप डेंटेस्ट और टूथपेस्ट के बारे में बताया, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने कुछ इंटरेस्ट दिखाया, तुरंत आप बोलिए सर आपको इस प्रोडक्ट अच्छा लगा। सही में आप एक चीज, तो आपको इस प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है ना, तो एक चीज बताइए, आप इसको अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना पसंद करेंगे? कितना जबरदस्त टेक्निक है, सोचिए। आप प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किए और आपने किसी को बताया कि घुटने के दर्द के लिए ग्लूकोसमाइन लेना बहुत अच्छी चीज होता है। तुरंत सामने वाला बोला अच्छा मेरे मम्मी का भी थोड़ा सा घुटने, तुरंत आपको एक बार क्लोज करने की कोशिश कीजिए, सर ये प्रोडक्ट कितना जबरदस्त है ना सर, तो सर आप जरूर शेयर करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ। अगर वो हाँ बोलते हैं तो ज्यादा वेट मत कीजिए, तुरंत उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा था कम से कम 3 बार आपकी कोशिश होना चाहिए पूरे मीटिंग में ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट क्लोज, जैसे ही आपके सामने वाला आपको इंटरेस्ट दिखाए, आप तुरंत ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज समरी क्लोज। आपने पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दिए, आपका सारा चीज कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप समराइज करेंगे सारे शुरू से लेकर लास्ट तक। क्यों? अपना ह्यूमन ब्रेन जो है ना, ये ब्रेन क्या करते हैं ना, हर टाइम थोड़ा थोड़ा गैप के बाद भूल जाते हैं पीछे पीछे क्या क्या हुआ। लेकिन आप वहां पे गए कुछ मकसद के साथ कि उस इंडिविजुअल की ज्वाइनिंग निकलना है, उनके प्रोडक्ट परचेस करवाना है, तो आप क्या कीजिएगा, प्रेजेंटेशन जैसे खत्म हो जाए एक बार समराइज कर दीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक, छोटा सा समरी, मतलब छोटा सा कुछ बेनिफिट्स, स्पेशली कौन सी है जो बेनिफिट्स है, जो उन्होंने बीच में जिस बेनिफिट को तारीफ किया था, इस टाइप की चीज को एक बार समराइज कर दीजिए, ठीक है। करने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग के लिए बोले। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सर स्पिरुलिना आपको पता है सर, स्पिरुलिना में 45 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं और कई सारे अमीनो एसिड रहते हैं, ये हमारे डेली नीड में अगर हम लेके आएंगे तो हमारे लाइफ हेल्दी रह सकता है। WHO और नासा इसको सुपर फूड ऑफ द अर्थ की, जैसे ये क्या हमने समराइज कर दिया, उनके दिमाग में स्पिरुलिना दोबारा डाल दिया, तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है क्या, जैसे ही बोले तुरंत ज्वाइनिंग। आपको मैं एक अच्छा सा टेक्निक भी बता रहा हूँ कि ज्वाइनिंग जो फॉर्म होता है ना, आज के डेट में उसकी इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आपके साथ ज्वाइनिंग फॉर्म रखी है, ज्वाइनिंग फॉर्म बहुत काम की चीज है, उसके लिए भी आगे बताऊंगा मैं ज्वाइनिंग फॉर्म के क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है, সবাই বুঝতে পারছেন আশা করি। Okay, now we are moving to the next part, that is third party close.
थर्ड पार्टी क्लोज देखिए, आस्क द प्रोस्पेक्ट टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन द सिमिलर एक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप ये जो मैंने अभी ग्लूकोसामाइन की थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, कभी कभी क्या होता है, आपने प्रेजेंटेशन दे दी है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये अनबन कर रहा है, अभी जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, ऐसे कुछ डाउट टाइप कुछ हो रहा है, तो उस टाइम आप थर्ड पार्टी की सपोर्ट ले सकते हैं। कैसे थर्ड पार्टी क्या होता है, उस टाइम एक स्टोरी बनाइए, जो स्टोरी बनाइए मतलब स्टोरी मींस जो आप इतने दिन प्रोस्पेक्ट नहीं किया, तो स्टोरी तो आपको मीटिंग में गया तो पता ही चल गया होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया कि आप एग्जांपल दे सकते हैं, पता है मेरे दादी माँ को उनकी 60 इयर्स प्लस एज है, उनके घुटने पे बहुत ज्यादा दर्द था और 10 साल से वो परेशान थे इस दर्द के लिए। हमने जैसे वेस्टेज ज्वाइन किए, हमने ग्लूकोसामाइन कैल्शियम कोलाजन दिया और 3 महीने के अंदर शी इज एब्सोल्युटली फाइन। और आपको आप बिलीव नहीं करोगे, अब वो तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। ये हो गया थर्ड पार्टी क्लोज। क्या है, आपने किसी थर्ड पार्टी की सपोर्ट ली है। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स जो हम लोग आप देखेंगे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स वेस्टेज की यूट्यूब में अवेलेबल है, उसको देख लीजिए, जान लीजिए, या मीटिंग में भी आते हैं, बहुत सारा चीज लोग बोलते हैं मेरा ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, उस चीज को, उसी स्टोरी को वहां पे दोहरा दीजिएगा। उससे क्या होगा ना, वो सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा वेस्टेज के प्रोडक्ट के प्रति, वो आपको जैसे इंटरेस्ट दिखाएगा फिर तुरंत ज्वाइनिंग। टाइम वेस्ट होने मत दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ट्रायल क्लोज, लिमिटेड इनिशियल कमिटमेंट लीडिंग टू ग्रेटर फ्यूचर एक्सेप्टेंस। ठीक है, जैसे ट्रायल क्लोज क्या होता है, ट्रायल क्लोज की एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, हम लोग इसको कई बार इस्तेमाल करते हैं और बहुत इफेक्टिव भी रहता है। जैसे किसी को प्लान शो करने जाते हैं, साथ में ना कुछ प्रोडक्ट भी आप लेके जाइए। अभी साउंड आ रहा है मेरा मेरा साउंड अभी क्लियर है? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। देखिए, लिमिटेड इनिशियल कमिटमेंट क्लोज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पे मीटिंग करने गए, तो आप साथ में ना जो फ्री वाला प्रोडक्ट मिलता है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, इस टाइप की प्रोडक्ट आप साथ में लेके चलिए। हो सके तो राइस ब्रांड ऑयल भी लेके जाइए, वो डिपेंड करेगा किसके पास आप जा रहे हो। ठीक है, वहां पे जाके आप जैसे पूरा प्रेजेंटेशन हो गया, इंडिविजुअल ज्वाइन उसी मोमेंट पे नहीं किया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डोंट गेट डिसहार्टेंड, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको उस टाइम ज्वाइन नहीं हुआ तो इंडिविजुअल ज्वाइन नहीं करेगा, ही विल ज्वाइन। उसके लिए एक तरीका है, आप उनको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइस ब्रांड ऑयल की दिया हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको इस्तेमाल कीजिएगा। एक प्रोडक्ट उनके पास छोड़ दीजिएगा, देखिए बोलिएगा सर ये प्रोडक्ट ना आप थोड़ा सा एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, ये ट्राई कीजिए। तो राइस ब्रांड ऑयल के दाम मैंने क्यों बताया कि राइस ब्रांड ऑयल की कॉस्ट ज्यादा है। आप छोड़ेंगे तो इंडिविजुअल कुछ लोग वो क्या बोलेंगे, ठीक है मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ, तो वो पैसा ले लीजिए, कोई इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप आधा पैसा ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा ले लीजिए उनसे। और उनको बोलिए कि सर इसका आप इस्तेमाल कीजिए, मैं 2 हफ्ते बाद आ रहा हूँ, आफ्टर 2 वीक्स मैं आ रहा हूँ, और आप इस्तेमाल करने के मुझे बताइएगा प्रोडक्ट कैसा है। वो इंडिविजुअल आपको क्या लगता है, वो राइस ब्रांड ऑयल अगर यूज करेंगे, वो राइस ब्रांड ऑयल अगर वो यूज करेंगे तो उनको आपको क्या लगता है कि वो इसको क्या बोलेंगे, क्या रिमार्क्स क्या आएगा उनका, क्या आएगा उनको, अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? चैट बॉक्स में लिखिएगा, उनको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? जरूर अच्छा लगेगा, राइट? उनको ये प्रोडक्ट जैसे अच्छा लगेगा, चैट बॉक्स में कुछ यस यस, थैंक यू, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। जब 2 हफ्ते बाद जाएंगे तो ज्वाइन कर जाएगा, राइट? तो ये भी एक क्लोजिंग टेक्निक है। ठीक है, यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज जो है, आप लोग छोटे छोटे चीज, ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा डिटेल्स में कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज, सारा कुछ करने के बाद छोटी छोटी चीज अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छा। इसमें क्या, एक ट्रायल क्लोज होता है और दूसरा है सैंपल ट्रायल क्लोज। ठीक है, वो सैंपल ट्रायल क्लोज डिफरेंट टाइप होता है, वो मैं बताऊंगा आगे। ट्रायल क्लोज की एक डिटेल्स एग्जांपल मैं आपको और भी देना चाहता हूँ। इसमें ट्रायल क्लोज में ना आपको पता चल जाएगा कस्टमर कितना कन्विंस्ड है, क्योंकि वो बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो आपको फिर पता चल जाएगा उनके साथ कैसे बिहेव करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने जो प्रोडक्ट दिए और उन्होंने उसका फीडबैक सही नहीं दिया, मतलब किसी कारण से, तो आप उनके पास दूसरा प्रोडक्ट दे सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, वेस्टेज में इतने सारे प्रोडक्ट है, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो अच्छा लगेगा। साबुन अच्छा नहीं लगेगा, टूथपेस्ट दे दीजिए, फ्री में आता है ना, दे दीजिए, उनको ट्राई करने दीजिए। लेकिन एक बार जो प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो आप सोचिए आपके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रेडी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायल क्लोज।
ट्रायल क्लोज की हमने एग्जांपल पहले ही बता दिया आपको, बहुत बढ़िया टेक्निक है ट्रायल क्लोज की, ठीक है। ट्रायल क्लोज की एक और एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, जैसे फ्लेक्स ऑयल की डेमो हम देते हैं, राइट, फ्लेक्स ऑयल की डेमो देते हैं हम लोग, फ्लेक्स ऑयल की डेमो भी ट्रायल क्लोज में आता है। फ्लेक्स ऑयल की डेमो हाथ में रख के जो उसको पिघलाने वाला थर्मोकोल को, दैट आल्सो कम्स इन ट्रायल क्लोज। इसकी बहुत सारा एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एफर्मेटिव उनसे जैसे ही मिले तुरंत हमें ज्वाइनिंग की मौका मिल जाता है, और एक दूसरे से हम वार्तालाप करते रहते हैं, कन्वर्सेशनल रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक हमें मिलता है इसके बारे में, और क्या है बेनिफिट्स जो हम उनको समझा सकते हैं, ठीक है। अब आता है सैंपल ट्रायल क्लोज। एक्चुअली ट्रायल क्लोज एंड सैंपल ट्रायल क्लोज आसपास में ही है। ट्रायल क्लोज में क्या है कि आप उसमें से पैसे उनको, जो होता है ना, कई लोग सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट को, उनके लिए ट्रायल क्लोज ज्यादा बेनिफिशियल है, और जो सेलिंग करना पसंद नहीं करते उनके लिए सैंपल ट्रायल क्लोज ज्यादा पसंद है। उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वो फ्री प्रोडक्ट्स को एज ए सैंपल देके आएंगे। चीज वही है, उनसे कमिटमेंट लेना है कि सर इसको आप इस्तेमाल कीजिए, मैं 2 हफ्ते के बाद आ रहा हूँ, और जैसे 2 हफ्ते के बाद पहुंचो तो आपकी ज्वाइनिंग है कंफर्म मिलेगा, ठीक है। सैंपल ट्रायल क्लोज। एक आता है अल्टरनेटिव क्लोज। अल्टरनेटिव क्लोज क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अल्टरनेटिव क्लोज। आपको मीटिंग के बीच बीच में बात करते करते आपको बीच बीच में इस तरह का सवाल पूछना है, सर आपको एक चीज बताइए, सर कौन सी कैटेगरी आपको ज्यादा शूट कर रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए कौन सी कैटेगरी ज्यादा अच्छा शूट कर रहा है। अगर मान लीजिए कुछ एक बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्किन फॉर्मूला 9, तो जैसे स्किन फॉर्मूला 9 बोले, सर स्किन फॉर्मूला 9 से सर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट आपके लिए रेडी कर दूं ना सर, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, आप लिखना स्टार्ट कर दो कॉपी में। इससे क्या होता है ना, सामने वाले के दिमाग में एक मैसेज जाना स्टार्ट हो जाता है, अरे ही इज, वो कितना पॉजिटिव है मेरे बारे में, वो मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहा है, ठीक है। तो जैसे आप ये काम करोगे ना, एक अच्छा सा पॉजिटिविटी वहां पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा कि वो आपके इस प्रोडक्ट्स के बारे में वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तब प्रेजेंटेशन के दौरान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं बता रहा था कि जब भी प्रेजेंटेशन देते रहते बीच बीच में आप इसको करते रहिए, एक क्लोजिंग की टेक्निक बीच बीच में अप्लाई करते रहिए। देखिए कुछ लोग इसको अप्लाई भी करते हैं, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, कितना अच्छा फीडबैक है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्लोज। अब आता हूं मैं एक और, एजम्पटिव क्लोज। ये क्या है, ये हमें दिमाग में सोच लेना है कि हमारे प्रोस्पेक्ट सामने जिसको हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ही इज रेडी टू ज्वाइन। हम प्रेजेंटेशन दिखाना खत्म हुआ जैसे ही हम वो ज्वाइनिंग फॉर्म, मैं आपको बता रहा था ज्वाइनिंग फॉर्म साथ में कैरी कीजिएगा, वो बहुत बढ़िया चीज है, उसको निकालिए, उसमें अपना ऊपर में अपलाइन में अपना नाम लिख दीजिए, डाउनलाइन में उनका नाम लिखते टाइम पूछिए सर आपके नेम की स्पेलिंग क्या है। अगर उस इंडिविजुअल ने आपको नाम की स्पेलिंग बता दिया, इसका मतलब आपका ज्वाइनिंग कंफर्म है, ठीक है। इसको बोलते हैं एजम्पटिव क्लोज, ठीक है। उसके बाद आप फुल फिल कीजिए और साइन कर, जब साइन करने बोलेंगे ना तो घबराएंगे थोड़ा सा, वो बोलेंगे अरे क्यों साइन, बोले सर कुछ नहीं, साइन करने से ज्वाइनिंग नहीं होता है, ठीक है। उनको कंफर्टेबल कर लीजिए, ठीक है। इसको होता है एजम्पटिव क्लोज, इसको भी अप्लाई करेंगे तो इससे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। एक, उससे सामने वाले के दिमाग में ये जाएगा कि वही सेम चीज कि इंडिविजुअल इज सो मच केयरिंग फॉर मी, केयरिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ठीक है। आप एक आता है बिल्ड अप क्लोज। बिल्ड अप क्लोज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लोज है। हमें मतलब किसी भी इंडिविजुअल से लगातार हम यस के आंसर अगर 3 से 4 बार या ज्यादा से ज्यादा 5 बार ले लेते हैं, तो हमारे कोई भी चीज में वो यस ही यस बोलेंगे, ठीक है। ये इसमें क्या, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया कि जैसे आप पूछ सकते हैं सर आपको पता है आज के खाने में जो भी हम लोग बाहर से खाना खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा मिलावट है, वो क्या बोलेंगे, हाँ या ना, जरूर हाँ बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चन एक साथ करते रहिए, सीरीज ऑफ क्वेश्चन, सर एक चीज बताइए हार्ट अटैक और डायबिटीज ये कॉमन है कि नहीं आज के डेट में, तो क्या बोलेंगे, हाँ। आप थर्ड क्वेश्चन स्ट्रेट वे डालिए, सर एंटीबायोटिक और मेडिसिन हम जो डेली ले रहे हैं उसमें साइड इफेक्ट कितना ज्यादा है, सही कि नहीं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, राइट। वो क्या बोलेंगे, हाँ। ये कॉमन सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ये तीनों क्वेश्चन हाँ हुआ ना, तो जो चौथा वाला वहां पे डाल दीजिए बॉल उनके इसमें, कि सर देखिए हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना इतना यूनिक है सर, ये एंटीबायोटिक की तरह नहीं है, इसमें ये जितने सारा सप्लीमेंट इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो क्या बोलेंगे, हाँ। बस ये जो 4 हाँ हो गया ना, 4 हाँ के मतलब है तुरंत आप उनकी ज्वाइनिंग कंफर्म कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बिल्डअप क्लास, आपने बिल्डअप कर लिया उनके साथ रेपो और हो गया।
अब एक एक्सीलेंट क्लोजिंग टेक्निक, दैट इज आस्क फॉर हेल्प क्लोज। जब ऐसा भी होता है आपने प्रेजेंटेशन कर दिए, सारा चीज हो गया, आपको लग गया नहीं भैया ये तो ज्वाइन नहीं करेंगे, कभी होता है किसी के साथ ऐसे? जिसके साथ होता है थोड़ा सा हैंड रेस कीजिएगा कि आपने सारा मेहनत कर लिए, पूरे ताकत लगा दिए, लेकिन आपको लगता है आप तो ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है। ऐसा होता है ना? यस, देखिए कितने सारे हाथ आ रहे हैं, राइट? इसके लिए मैं आज एक रामबाण इलाज आपको बता रहा हूँ, रामबाण इलाज। इसको जब आपकी सारा चीज हो जाए, जब लगता है ज्वाइनिंग नहीं होगा, तो आप, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी आपने पूछ लिए, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी बताया, लेकिन उन्होंने एक्चुअल ऑब्जेक्शन आपको नहीं दिया, तो आप उसको स्ट्रेट वे सवाल पूछिए कि सर बुरा मत मानना, ठीक है, क्या आप सही में बता सकते हो सर एग्जैक्टली क्या रीजन है जिसके कारण आज आप स्टार्ट में वेस्टेज को स्टार्ट नहीं कर रहे हो? स्ट्रेट वे यही एकदम वर्ड टू वर्ड ये सवाल पूछिएगा, सर बुरा मत मानना, आप अगर थोड़ा सा बताएंगे एग्जैक्ट रीजन क्या है जिसके कारण आज आप वेस्टेज स्टार्ट नहीं कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा सर, आपकी ये आंसर मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा सर, क्या आप बता सकते हो? अभी जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे ना, ही विल गिव यू द राइट ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसा है वो कृष्णेंदु सर आपको बता चुके हैं, राइट? कृष्णेंदु सर आपको उसके बारे में पूरा डिटेल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्शन उस टाइम जैसे उनका ओरिजिनल ऑब्जेक्शन आ जाएगा तो आप उसको स्ट्रेट वे वहां पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? समझ रहे? अच्छा लगा ना? यही है आस्क फॉर हेल्प क्लोज। तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, रामबाण इलाज है। जब सारा चीज फेल हो जाता है, जब लगता है कि नहीं आप तो गया, उस टाइम इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है? मैं बहुत सारे टेक्निक बता रहा हूँ, एक लास्ट मैं 10 टेक्निक बोला था, 10 में से 10वां टेक्निक ये है बूमेरैंग क्लोज। देखिए हम लोग बूमेरैंग क्लोज इसलिए बताना जरूरी है लास्ट में। देखिए आपको कोई ऑब्जेक्शन दिया है, आपने सब कुछ कर दिए, इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना अपना फाइनल ऑब्जेक्शन बताया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया, उन्होंने पहले आपको नहीं बताया था, दूसरा इधर उधर के ऑब्जेक्शन बता रहे थे, लास्ट में आपको बताया ऐसा है भैया मेरे पास ना पैसा नहीं है, तो आप उसको एक बूमेरैंग क्लॉज दे सकते हैं, बूमेरैंग क्लॉज। ये वर्डिंग एकदम वर्ड टू वर्ड ऐसे इस्तेमाल कीजिएगा। सर एक चीज सोचिए, आप आज यंग है, आज आपका एज अच्छा है, आज से 40 साल बाद जब आपकी एज 60 या 65 हो जाएगा और आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी होगा, आप अपने बेटे के पास बोलोगे बेटा मेरा इस ऑपरेशन कराना है, और आपके बेटा ऐसा बोले पापा मेरे पास पैसा नहीं है, क्या आप ये चीज सुनने के लिए तैयार है? क्या लगता है इसको बोलने से क्या होगा इफेक्ट? फ्रेंड्स आप लोग बताइए क्या हो सकता है? सामने वालों को अगर वर्ड टू वर्ड इस तरह से बोलेंगे तो क्या लगता है, सामने वालों के दिल को छुएगा कि नहीं छुएगा? क्या लगता है? क्या लगता है आपको? ये है बूमेरैंग क्लोज। जब आपकी सारे रास्ता बंद हो गया, आपने उस टाइम आस्क फॉर हेल्प क्लोज भी अप्लाई कर लिए, उस टाइम आपको फाइनल एक ऑब्जेक्शन बताएंगे, उस ऑब्जेक्शन के जवाब वर्ड टू वर्ड ऐसे दीजिएगा, उसको सीधा इमोशन को टच करना है। सर सोचिए आपकी बुढ़ापे में आपको एक मेडिकल इमरजेंसी, आपके नहीं आपके वाइफ की एक मेडिकल इमरजेंसी हो गया और आपको लेके जाना है बैंगलोर ट्रीटमेंट के लिए। आप बेटे को बोले बेटा तुझे मेरे साथ चलना है तेरे मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए, और बेटा ऐसे बोल दे पापा मेरे पास टाइम नहीं है, कैन यू अफोर्ड दिस आंसर? अपने बेटे से ये जवाब अच्छा लगेगा आपको? आज आप बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वेस्टेज को शुरू नहीं कर सकता हूँ, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो इस चीज को? फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं, लोगों की पसीना छूट जाएगा जब ये बोलोगे, उनको सोचने पे मजबूर कर दोगे, एंड बिलीव मी वो पूरे रात सो नहीं पाएगा, इस चीज को सोचता रहेगा, और आप जब अगले दिन उनसे मिलने जाओगे ना, ही विल जॉइन ऑन द स्पॉट। मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको ये टेक्निक को बार बार इस्तेमाल करना है, बार बार इस चीज को इस्तेमाल करना है लोगों के सामने। इस पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं ना, वर्ड टू वर्ड ऐसे सेंटेंस को इस्तेमाल करना है। आपको लग रहा है यार ऐसे बोल दूंगा कैसे लगेगा, क्या सोचेगा, कुछ नहीं। आप बिजनेस करने गए हो, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर। आप टीम बिल्डर, आप किसी की अच्छाई करने गए हो, आप किसी की भला करने गए हो, आपकी जैसे एंट्री है ना वैसे धुआंधार आपके एग्जिट होना चाहिए वहां से। सामने वाले को ये ना लगे कि अरे ये ज्वाइनिंग कराने आया था, देखो मैंने इसको घुमा के भेज दिया। नो, आप ऐसे बोल के आओ कि साला रात को उसको नींद ना आए पूरे रात को। मैं बता रहा हूं इस तरह के लास्टली आप बूमेरैंग क्लोज तो जरूर, जब ना होना सब चीज, तो ये तो बोल के आना है।
अब बोलोगे ना तो आपका धुआंधार एग्जिट होगा वहां से, और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ उस इंडिविजुअल को रात भर उस दिन नींद नहीं आएगा। अगली बार जब भी मिलेगा ना तो आपको हैट्स ऑफ करेगा, सैल्यूट करेगा। इसको आप अप्लाई कीजिएगा आपके बिजनेस में, आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न आने वाला है। ठीक है दोस्त, ये 10 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, इसके अलावा बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन ये बहुत ही वाइटल चीज है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। देखिए, कमिटमेंट लेना, सामने वालों की कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। अगर हम उनके कमिटमेंट लेंगे तभी वो हमारे साथ कंटिन्यूअस बिजनेस में है। एक बार में हम उसको सेल करके नहीं आना है, हमें उनको कंसिस्टेंसी में रखना है और लाइफ टाइम के लिए रखना है, इसलिए कमिटमेंट बहुत जरूरी है। हम कभी भी प्रेजेंटेशन दे उनको लास्ट में समराइज करके उसके बेनिफिट्स उनको बताना है, क्योंकि इंसान की एटीट्यूड है भूल जाता है बहुत जल्दी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जैसे मैं बताया ना, जैसे बुमेरंग क्लोज, वो या कोई भी क्लोजिंग टेक्निक आप अप्लाई करके थोड़ी देर चुप रहिए, उनको सोचने दीजिए, कुछ बोलिए मत। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट चुप रहिए, देखिए ना क्या रिजल्ट आ रहा है। आप देखेंगे, आप हैरान हो जाओगे। आप अभी तक मैं आपको बता रहा हूं, बिलीव कीजिए, अभी तक आप लोगों ने जहां पे भी प्रेजेंटेशन देने गए होंगे, आप चुप रहने की कला को नहीं सीखे। आप प्रेजेंटेशन दीजिए और ये सारा क्लोजिंग टेक्निक अप्लाई करने के बाद आप थोड़ा सा चुप हो जाइए, बस सामने वालों के दिमाग के अंदर ना दही होने दीजिए। आप बिलीव नहीं करोगे इसके कितना तगड़ा रिजल्ट आता है। मैं आपको बताया, ये सारे मेरे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मैं सीखा हूं, और इसको सीखने के बाद मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंजेस ये था कि हमारे जो अपलाइन वो हमारे साथ पास में नहीं थे। दे आर वेरी विलिंग टू हेल्प, उन्होंने 1-2 बार आगरा आए भी है, लेकिन आप बिलीव कीजिए, कलकत्ता से आगरा जाके हेल्प करना बार बार पॉसिबल नहीं है। और उस टाइम इस तरह के जूम मीटिंग भी नहीं हुआ करते थे जहां से हम सीख सकते थे। तो हमारे पास एक सबसे बड़ा बेनिफिट था यूट्यूब, जहां से हम सीखे थे। सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग और बहुत सारे ट्रेनर्स की ट्रेनिंग वहीं से यूट्यूब से सीखे थे, और जो मैंने मेरे मैनेजमेंट की स्टडी, वहां से मार्केटिंग से थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जो आज आपको मैंने शेयर किया आपके साथ, ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। इसको आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। वन सिंपल शिफ्ट could change your life forever, so don't wait, ask for it। पूछिए, पूछना जरूरी है, आपको पूछना पड़ेगा। कोई अपने आप पैसा निकाल के आपके हाथ में नहीं देगा, आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप पूछने में मत हिचकिचाइए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो बिगेस्ट डिफरेंस है ना, वो आपके एक्शन से आता है। आपको सक्सेस जो आएगा ना, आपके एक्शन से आएगा। सो आपको पूछना पड़ेगा ऑलवेज। जब भी प्रेजेंटेशन देने जाए ना, 2-3 बार कोशिश कीजिए ज्वाइनिंग के बीच बीच में, ठीक है। ठीक है दोस्त, सबसे अच्छा आप लोग को ज्वाइनिंग की जो ट्रेनिंग लगा, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आपके मीटिंग तो क्लोज हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन हम लोग उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा नेक्स्ट 2 पॉइंट्स क्या मैंने बताया था, टीम वर्क एंड फॉलो अप, जो वेरी एसेंशियल है। इसको आप बना के रखिएगा, तभी जाके आपके सबसे सही चीज, आपके जो टीम में से जो ना इफेक्टिव टीम तभी बनेगा। टीम वर्क आपको करना है, फॉलो अप लगातार करना है, ठीक है। Winning new distributor is much harder and less profitable than keeping your old team members with you, ठीक है। नए ज्वाइनिंग में जरूर ध्यान दीजिए, लेकिन पुराने टीम मेंबर्स के साथ रेपो बना के रखिए ऑलवेज, बिकॉज दे आर विथ यू फॉर लाइफ टाइम। इस चीज को आप मत भूलिएगा, इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लास्टली टू कंप्लीट द नोट, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये हमारे मतलब यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद